Hello aspirants, welcome to Core English. I hope you are doing great. Today we are about to discuss our first poem of class 11, which is a photograph by Charlene Tolson. Let's get started with the amazing quotation which says the beginning is the most important part of the work. As we all know, कोई भी वर्क को इनिशिएट करने के लिए फर्स्ट स्टेप बहुत क्रूशियल होता है. And for that, you should have a plan. You should have a courage to start over the work, even it seems difficult. Once you begin that work, you really glow differently. So you should begin fearlessly. Let's talk about now about poetess Charlene Tolson. इनका जन्म 20 मई 1924 में इंग्लैंड में हुआ था. ये क्रिएटिव राइटर भी रह चुकी हैं. टीचर के तौर पे इन्होंने ढेर सारे जर्नल्स भी बनाए हैं. और इनका डेथ 23 सितंबर 2018 में हुआ था. Before we start the poem, I would like to give some brief about this poem. This poem is all about poetess Charlene Tolson and her deceased mother's childhood memories. And poetess had no words to describe her grief as she misses her deceased mother a lot. The cardboard shows me how it was when the two girl cousins went paddling, each one holding one of my mother's hands, and she is the big girl, some 12 years or so. Here comes the word cardboard, means frame. Cardboard को frame बोलते हैं. Went paddling. Paddling means to walk with no shoes through water. To walk barefoot through water. She is the big girl. It means mother is referred as the big girl as she was the eldest among the three girls. So this poem is all about poetess Charlene Tolson's mother and her memories. इस पोएम में बताया गया है कि पोएटिस एक कार्डबोर्ड पे फोटोग्राफ देख रही है. उसमें उनकी मम्मा और उनकी दो बहनें हैं जो कि पैडलिंग कर रही हैं, लहरों के बीच में चल रही हैं और तीनों ही एक दूसरे का हाथ पकड़कर चल रही हैं. और शार्लिन टॉल्सन की मम्मा उनकी बाकी दो बहनों से बड़ी हैं. उनके साल 12 साल हैं, 12 साल की हैं तब की ये पिक्चर है. और ये बेट्टी है और ये डॉली है, उनकी दो कजन सिस्टर्स. All three stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. A sweet face, my mother's that was before I was born, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. Stood still मतलब वो still खड़ी हैं, स्माइल के साथ खड़ी हैं. Terribly transient feet, it means temporary. As we all know, human body is temporary, not for forever. So transient means temporary. Now let's go to the explanation. All three stood to smile through their hair at the uncle with the camera. तीनों बहनें स्माइल के साथ स्टिल एक पोज में खड़ी हैं बिकॉज उनके अंकल उनका पिक्चर्स ले रहे हैं कैमरा से और उनके बाल उड़ रहे हैं. वो स्माइल कर रही हैं अपने वेट हेयर के साथ, हवाएं चल रही हैं वेट हेयर के साथ, उनके बाल उड़ रहे हैं और वो स्माइल कर रही है स्टिल होकर पोज देते हुए अपने अंकल के कैमरा पे. अब उनकी मदर का स्वीट फेस है, बताना चाह रही है कि उनकी मदर का स्वीट फेस था जब वो 12 इयर्स की थी
और जब वो बॉर्न भी नहीं हुई थी, जब शर्लिन टॉल्सन बॉर्न भी नहीं हुई थी, तब उनकी मम्मा का फेस स्वीट फेस था। जब वो 12 ईयर्स की थी, जब ये फोटो ली गई थी, and the sea, which appears to have changed less, washed their terribly transient feet. और जो सी है वो कम कम बदलाव आया है उसमें, जबकि ह्यूमन नेचर में काफी बदलाव आते हैं। ह्यूमन बॉडी फॉरएवर के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, और उनके सी है जो कि काफी अभी भी वो काफी कम बदलाव हुआ है उसमें, लेकिन उनके टेम्पररी फीट को, उनके टेम्पररी एग्जिस्टेंस को वॉश करते हुए जा रही है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Some 20-30 years later, she'd laugh at the snapshot, see Betty and Dolly, she'd say, and look how they dress up for the beach. The sea holiday was her past, mine is her laughter. So, snapshot means photograph. Both worry with the labor days of loss. Now, she has been dead nearly as many years as that girl lived. And as of these circumstances, there is nothing to say at all. It's silence, silences. Here comes the word worry. It means ironic, mocking, disappointed. It means disappointed. Silence, a complete absence of sound. तो जब की ये फोटो ली गई है, 12 इयर्स की थी जब शर्लिन टॉल्सन की मम्मा, उसके 20-30 साल बाद उसकी मम्मा स्नैपशॉट फोटोग्राफ को देखकर हंस रही हैं और बोल रही हैं, देखो बेटी एंड डॉली को, और देखो हमें कैसे तैयार किया गया था बीच के लिए, हम लोग कैसे तैयार होकर गए थे बीच पर। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, और जो सी हॉलीडे है अभी के टाइम में उनके लिए वो पास्ट रह चुका है, उनके लिए एक चेरिश मेमोरीज है। और मेरे लिए उनका लाफ्टर, जब वो बोल रही थी कि देखो बेली एंड डॉली को, देखो हम लोग के लिए कैसे ड्रेसअप किया जा रहा था, वो मेरे लिए पास्ट है। कौन बोल रही है? शर्लिन टॉल्सन, जो कि मैं अब दोबारा नहीं देख पाऊंगी बिकॉज माई मदर इज नो मोर। बोथ वरी एंड विद द लेवर्ड ईज ऑफ लॉस, दोनों के लिए एक डिसअपॉइंटेड मोमेंट है ये। क्यों डिसअपॉइंटेड? क्योंकि ये लोग वापस से वो अपनी मम्मा को मुस्कुराते हुए नहीं देख सकती हैं, लाफ करते हुए नहीं देख सकती हैं। Both the women would think about those past memories which they cannot live again. With the labored ease of loss, it means past memories जो कभी दोबारा जी नहीं सकती हैं, but they tried their best to adjust to what they lost. Now she has been dead nearly as many years as that girl lived. मतलब उनकी मम्मा को मरे 12 साल हुए हैं, जैसा कि पिक्चर्स में है। जब वो 12 साल की थी तब का वो फोटोग्राफ है, और उनकी मम्मा को मरे भी 12 साल हुए हैं। As of these circumstances denotes that the present situation of the poet, which is the painful memory of her mother. There is nothing to say at all because she is full of emotion. She is missing her mother a lot. Those are just memories. It's silent silences. और जैसा कि उनकी मम्मा का डेथ हो चुका है, तो उनकी मम्मा नहीं बोल सकती हैं, नहीं उनके साथ रह सकती हैं, जैसे कि वो साइलेंस हो चुकी हैं अपने डेथ से, उसी तरह यहाँ पे भी सन्नाटा पसरा हुआ है बिकॉज उनकी मम्मा अब उनके बीच नहीं है। इसीलिए उनकी डेथ के कारण वहां बहुत साइलेंस पसरा हुआ है, अ कंप्लीट एब्सेंस ऑफ साउंड, कोई साउंड नहीं, फुल ऑफ इमोशन है, बट कोई आवाज नहीं हो रही है, वो कुछ कहना नहीं चाह रही है बिकॉज शी हैज नो वर्ड टू एक्सप्रेस हर फीलिंग्स। So this is the end. Let's move to the poetic devices. ये अक्सर आते हैं हमारे एग्जाम्स में, पूछे ही जाते हैं। आपको एक स्टैंडर्ड दे दिया जाएगा, उसमें से आपको बोला जाएगा कि आप पोएटिक डिवाइसेस को
आउट करके बताएं कि कौन से पोएटिक डिवाइसेस यूज हुए हैं। तो फर्स्ट वन इज एल्यूजन। एल्यूजन हुआ है जब कार्डबोर्ड किस चीज को रेफर कर रहा है, फोटोग्राफ को रेफर कर रहा है। यानी कार्डबोर्ड में यहाँ बताया गया है, कार्डबोर्ड लिखा गया है यानी वो फोटोग्राफ है उसके अंदर, वो रेफर कर रहा है कि कार्डबोर्ड में एक फोटोग्राफ है जिसमें उनकी मम्मा का फोटोज हैं। अलिट्रेशन, अलिट्रेशन मतलब रिपीटिशन ऑफ इनिशियल लेटर, जहां आप देख सकते हो माई मदर्स ऐसा था तो दोनों में एम सिमिलर है। स्टूड स्टिल टू स्माइल, एस एस एस, इनिशियल लेटर सेम है, कॉन्सोनेंट सेम है। टेरिबली ट्रांजिएंट यहाँ भी है। साइलेंस साइलेंसेस, we can see SS in both the words. Let's move to the next. Transferred epithet. Transferred epithet का सिंपली सा एग्जांपल है ट्रांजिएंट फीट। ट्रांजिएंट फीट क्यों बोला गया है एपिथेट? बिकॉज ये ह्यूमन फीट से डिनोटेड है और ट्रांजिएंट एक एडजेक्टिव है। ये फीट को बता रहा है कि वो टेम्पररी है, लैक ऑफ परमानेंस इन ऑफ ह्यूमन लाइफ है। यानी कि वो फीट को डिनोट कर रहा है, बता रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है कि ट्रांजिएंट है वो हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, इट्स टेम्पररी। इट इज डिस्क्राइब्ड टू यू, it is described as the lack of performance of human life. Move to the next one. Oxymoron. In this literary device, oxymoron हम लोग कहते हैं जब कोई दो अपोजिट मीनिंग हो दो वर्ड का, बस उसे साथ में क्लब किया गया हो, साथ में उसे यूज किया जा रहा है। जैसे कि इस पोएम में हम लोग लेवर्ड इज का यूज किए हैं। लेवर्ड मतलब होता है जो कि आप हार्ड वर्क से पा सको, ग्रेट डिफिकल्टी से, और ईज मतलब कंफर्टेबली आप उसे इजी के साथ, इजी वे में आप उसे कर सको। दोनों ही वर्ड एक दूसरे के कंट्राडिक्टरी हैं, दोनों अपोजिट हैं, बट उन्हें साथ में रखा गया है। तो कोई भी वर्ड को ऐसा देखते हैं हम लोग जब कि लेबर्ड और ईज दोनों एक साथ को रखा गया है जबकि उनके मीनिंग्स डिफरेंट है, फिर भी उसे एक साथ क्लब करके किसी पोएम में डाला गया है, उसे हम लोग ऑक्सीमोरन पोएटिक डिवाइस बोलते हैं। पर्सोनिफिकेशन, इसका मतलब कि इसमें ह्यूमन क्वालिटी ऑफ साइलेंस आ जाता है, मतलब ह्यूमन क्वालिटी इसमें डाल दिया जाता है, इसमें जान डाल दिया जाता है, पर्सोनिफाई किया जाता है। जैसे कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स है उसमें जान डालने के लिए इस चीज का यूज होता है। इट्स साइलेंस साइलेंसेस, इस साइलेंस साइलेंसेस मतलब होता है क्योंकि मदर का डेथ हो गया है जिसके बाद वो कभी बोल नहीं पाएंगी अपनी बेटी से, पोएटेट से, शर्लेन टॉल्सन से। तो साइलेंस मीन्स उनकी मदर को डिनोट कर रहा है कि उनकी डेथ हो चुकी है और उनकी डेथ के कारण पूरी तरह सन्नाटा पसरा हुआ है, पूरी तरह साइलेंस है ऑल अराउंड पोएटेस के। That for this video. We will meet in the next one. I hope you like the video. Like, share and subscribe. Be safe. Thank you.